नीरज, गुड मॉर्निंग एंड आई विल बी स्ट्रेट ऑन द पॉइंट। इंडिया में यस। कितने तरीके के फार्मर्स हैं और लैंड होल्डिंग का क्या पैटर्न है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा एनलाइटन करो। बड़ी सीधी चीज है। एक बड़ी पुरानी कहावत है हिंदुस्तान में कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। जी। अब वो कृषि प्रधान देश का मतलब majority of the people who are engaged in the vocation of agriculture are farmers. They are considered as farmers. जी। I'm telling the general trend, not the latest findings which have come out, which are at little variance. We'll talk about it later. ओके। 86% of the farmers in India, or near about that, 87 or 85, whatever we say, but 86% is the general accepted figure from the NSSO survey, are small and marginal farmers. Small and marginal farmers means they have land holdings which are less than 2 hectares or 5 acres. जी। So these holdings are very small, and the family size is varying something like between 5 to 8 on an average. So if ओके। we talk of these averages, there are just 14% farmers who are so-called large farmers who have holdings more than 2 hectares of land. जी। So, medium and large farmers are more than 2 hectares of land. ओके। So, essentially, most of the farming in India is subsistence farming, or farmers do farming just to survive. They do ओके। not have marketable surplus from their farms. ओके। And the surprising fact is the marketable surplus in India, many studies have shown, come from the medium farmers or some very small number of large farmers. When we say large farmers, and if we take the holdings, where are these large farmers located? A sizable chunk of these large farms is in the states like Rajasthan, where 50 acres of desert land doesn't make any sense. Whether the farm is large or small doesn't make. Land holding should be productive. So ओके। irrigated land holdings, there are land ceilings in different states according to their local conditions, irrigated, unirrigated kind of thing. So most of the farmers, these 86% of the farmers have a control of nearly 47 to 48% of the crop area. जी। So that means their overall contribution is very less. So this is the general scenario of the distribution of farm size of farmers in India. ओके, आई अंडरस्टूड योर पॉइंट। अब आप मेरे को ये क्लैरिफाई करो, और काफी लोग इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि आफ्टर ऑल ये जो 3 फार्म लॉज हैं जो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करने का प्लान कर रही है या कोशिश कर रही है, सक्सेसफुली और अनसक्सेसफुली टिल नाउ, ये जो लार्ज फार्म ओनर्स हैं उनको कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, और स्मॉल फार्म ओनर्स को, जिनकी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, उनको ये कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, किसका फायदा किसका नुकसान? देखिए, बड़ी सीधी चीज है, ये फार्म लॉज बड़े सिंपल हैं. I'll just recap so that the discussion is on track and is focused. जी। पहला फॉर्म लॉ ये है कि गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया किसानों को कि वो एपीएमसी जो है या मंडीज के बाहर भी अपना प्रोड्यूस बेच सकते हैं. पहली जी। चीज, जी। दे आर नॉट बाउंड बाय द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर एपीएमसी. एपीएमसी एक्ट में अलग अलग स्टेट्स में माइनर वेरिएशंस के साथ ये था कि किसान अपने एरिया की मंडी में ही बेचेगा. ओ। ओके। राइट, उसके अलावा वो बाहर नहीं बेच सकता था वो प्रोड्यूस, जी। जी। एंड दैट वाज इलीगल. So government has removed that restriction now. The farmers can sell their produce anywhere to जी। anybody. जी। Second था जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है. फार्मर्स को दिक्कत हो रही थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, क्योंकि लॉज ऐसे नहीं थे जो फार्मर के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करें, जिसमें सबसे ज्यादा एप्रीहेंशन थी. लोगों ने, ऑपोजिशन ने मिसगाइड भी किया है फार्मर्स को कि आपका लैंड चली जाएगी अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ जाएगा. ऐसा कुछ नहीं है. जी। थर्ड लॉ था इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट. उसमें जो स्टोरेज है, ये जैसे बेचा किसी को या प्रोसेसर को या ट्रेडर को, वो अपने पास एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकता एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. वो होर्डिंग माना जाता है. जी। एंड टू प्रिवेंट शॉर्टेजेस एंड होर्डिंग, government had the Essential Commodities Act, which has been amended now, ओके। where reasonable amount of commodities can be stored. तो ये 3 फार्म लॉ है. अब इसमें ऑपोजिशन इसलिए है, द रीजन इज
there are, when I say the farmer is free to sell his or her produce to anybody and anywhere, जी होता क्या था कि अभी जो आड़तिया होते हैं या मिडलमैन होते हैं, वो फार्मर्स की फार्म प्रोड्यूस प्रोक्योर करते थे और मंडी में बेचते थे, मंडी में उनको कमीशन मिलता था. सो द कमीशन to these aditya's is fixed by the government, but there is no cap on it. It can be more also, but a minimum commission is fixed. ओके तो ये एपीएमसी में जो आता था प्रोड्यूस, वो अधिकतर आड़तियों के थ्रू आता था. डायरेक्ट फार्मर्स बहुत कम थे जो उसमें अपना सामान बेचते थे जाके. जी. तो अब जब ये फार्म लॉ आए और गवर्नमेंट ने किसानों को छूट दे दी that they can sell their produce anywhere, जी. it is the farmers who will benefit out of it. But the middlemen who are cheating the farmers up to now, some of them, not all of them, some of them who are cheating now, they feel that their source of income is getting eroded. That is why they are agitating. Same thing with the contract farming. Contract farming in India has been going on since long. 1961 से नेस्ले जो है वो मोगा में शुरू किया उन्होंने मिल्क प्रोड्यूस करना, मिल्क प्रोक्योर करना, मिल्क की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करी, टेक्नोलॉजी दी, सब कुछ करा. ऐसा तो नहीं हुआ कि उन्होंने फार्मर्स के डेयरी फार्म्स टेक ओवर कर लिए. या 1988 में पेप्सिको ने जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू करी पंजाब में जी, तो उसके बाद से कोई किसी फार्मर की जमीन ऐसी नहीं है, मतलब नेस्ले ने या पेप्सिको ने ली हो, टेक ओवर करा हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ जी. Most of the contracts with the farmers were to provide the produce of a certain quality and quantity. Okay. तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और ये जो नए लॉ हैं ये इसको थोड़ा सा और इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया. एप्रीहेंशंस थी फार्मर्स की, गवर्नमेंट ने ये भी एश्योरेंस दे दिया कि दे विल अमेंड इट टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द फार्मर्स दैट द कॉन्ट्रैक्ट विल बी ऑन द प्रोड्यूस, नॉट ऑन द लैंड. Okay. And there'll be, of course, if somebody is getting into a contract, he will go for certain quantity and quality of the produce. जी. हाँ, इतना जरूर है, ये फिर apprehension था कि these contracts will enable the corporates to take over the land. तो वो apprehension खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने. जी. तो दिक्कत सबसे ज्यादा आ रही है लोगों को कि उनके जो कमीशन थे वो बंद हो जाएंगे. जी. अब इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो पहले होर्डिंग करते थे उनको दिक्कत होती थी, अब वो होर्डिंग नहीं होगी. अब प्रोसेसर एक रीजनेबल क्वांटिटी अपने पास स्टोर करके रख सकता है फॉर प्रोसेसिंग एंड टेकिंग इट फॉरवर्ड. अच्छा, होता क्या है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का इंडिया में, देयर आर साइकिल्स. either there is a lot of produce in a particular year, in other years there is shortage. So this cyclical thing goes on, and because of this every agricultural economist, every policy maker, every person who wants to help the farmers have been saying since last 30, 35, 40 years to encourage food processing. If food processing is there, procurement of these farm produce will take place, farmer will be able to get better prices, and the impact of these cycles of shortages or glut will be minimized to a certain extent. Government had come up with a strategy called TOP, tomatoes, onions, potatoes, which see most of these fluctuations in crop yields or crop production. Okay. They wanted to control this, and because of the ad hoc manner in which the policies were implemented, so government had to ban exports at times or encourage exports at times, especially in case of onions and potatoes. So without a clarity, it is difficult also to have processors coming forward, having an ecosystem built in for procurement, processing, and marketing. These farm laws help this out. Okay. This is in short. Okay, अब मेरे को आप ये बताओ, and this is for the benefit of everybody. ये जो ब्रोकर्स थे या जो मिडल मैन थे, ये ज्यादातर आड़तिया ही थे या फिर जो लार्ज फार्मर्स हैं, 86% तो आपने बता दिया कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. उसके अलावा ये जो बड़े फार्म होल्डिंग जिनकी थी, वर दे आल्सो इन्वॉल्व्ड एज ए मिडल मैन or as a broker or as a facilitator, in lieu of commission at any level? See, the point is,
इफ वी से एक क्या है कि हमारे दिमाग में जो सोशलिस्ट थिंकिंग का भूत है वो सन 60 से ही चला आ रहा है, सन 50 से, जब से हमने इंडिपेंडेंस ली। जी जी और उसमें एनीबडी हु फैसिलिटेट्स आफ्टर टेकिंग अ सर्टेन फी, उसको वो चोर ही समझते हैं, जी भले ही वो फैसिलिटेशन कर रहा हो। एंड द रियलिटी इज विदाउट मिडलमैन एंड विदाउट दीज फैसिलिटेटर्स, trade cannot happen or commerce cannot take place for anything, be it industrial product, be it agricultural product. जी तो ये जो आपने कहा कि ये बड़े फार्मर थे क्या या आड़तिया थे, ये इनका रोल बड़ा मिक्स्ड रोल है। जी एक गांव में अब आधी एकड़ रकबे वाले फार्मर की अगर प्रोड्यूस होगी 2-3 कुंटल होगी या 1-2 कुंटल होगी, वो उसको 30 किलोमीटर दूर के बाजार में बेचने के बजाय वो अपने पास ही रखना चाहेगा, जी प्रोवाइडेड उसके पास मार्केटेबल सरप्लस हो। अब वो 1-2 कुंटल तो टोटल प्रोड्यूस हो रहा है उसका आधे एक एकड़ में, एक मार्केटेबल सरप्लस। सो दैट वर्क्स आउट कॉस्टली फॉर द फार्मर टू एन इंडिविजुअल फार्मर टू टेक हिज और हर प्रोड्यूस टू द मार्केट। सो गांव में एक, तो आपकी बात समझ गया नीरज में। अब ये जो बड़े फार्मर है या कोई फार्मर, उन्होंने हाँ, प्रोड्यूस इकट्ठा करा और अपने संग ट्रॉली में या बुग्गी में ला के नियरेस्ट मार्केट में वो बेच देते हैं। जी तो ये रोल वहां के लार्ज फार्मर्स और इवन दी मिडलमैन और आड़तिया, हाँ हाँ मंडी के, लोकल मंडी के, वो करते हैं। वो तो ये करते रोल हैं। मिक्स्ड है। कुछ आड़तियों के खेत भी होंगे बड़े, जी वो भी तो दे आर आड़तियाज बट दे आर फार्मर्स आल्सो। तो डुअल रोल में जहां जहां फायदा लगा वहां आड़तिया बन गए, जहां फायदा लगा फार्मर बन गए। ओके फाइन, मैं समझ गया आपकी बात। दिस इज द जनरल सिनेरियो। दिस द जनरल सिनेरियो। तो ये या रोल तो इन एनी केस इनका ये रोल कि आप उसको छोटे फार्मर को एक फैसिलिटेट करें, यू नो, इन टर्म्स ऑफ सब्सिडीज, इन टर्म्स ऑफ यू नो ऑल द इनपुट्स, ये रोल तो उनका अभी भी रहने वाला है। द क्वेश्चन इज नहीं नहीं, ऐसा बेसिकली है, सब्सिडी में इन लोगों का कोई रोल नहीं है। ओके सब्सिडी में कोई रोल नहीं है। और ओके बेसिकली क्या है, फैसिलिटेटर तो हैं, दिक्कत क्या हाँ थी, वो फैसिलिटेटर और एक्सप्लॉयटर की एक बड़ी थिन लाइन है। हाँ, इस पॉइंट तो को क्लियर करो जरा। तो उस पॉइंट पे आके, हम्म आफ्टर फैसिलिटेशन इज फाइन, अप टू फैसिलिटेशन इज फाइन कि उसका प्रोड्यूस वो प्रोक्योर करके मार्केट में बेच रहा है जी और पैसे वापस कर रहा है। जी बट एट टाइम्स सी दी स्मॉल फार्मर, एक तो उसकी लिमिटेशन ये है कि उसके पास इतना कैपिटल नहीं है, इतनी रेजिलियंस नहीं है कि वो स्टोर कर सके ज्यादा समय तक प्रोड्यूस जो उसकी हुई, थोड़ी जी बहुत जितनी भी हुई, वट एवर लिटिल हैज बीन प्रोड्यूस, ही कैन नॉट स्टोर इट। अगर स्टोर ओके करना चाहेगा तो स्टोरेज फैसिलिटीज गांव में नहीं है अभी तक, जी राइट। सो दीज, अच्छा, अगर कोई पर्टिकुलर वैरायटी या क्रॉप लेना चाहता है तो उस नई क्रॉप में सीड्स महंगे मिलेंगे या देर से मिलेंगे, तो उसके लिए क्या करते थे ये बड़े फार्मर्स या आड़तिया और फैसिलिटेटर, सो टू से फॉर आवर जी डिस्कशन, जी वो उनको एडवांस भी दे देते हैं प्रोड्यूस जी होने से पहले कि भाई तुम खरीद लो, और उसको वो कहते हैं कि जो प्रोड्यूस से पैसे आएंगे उसमें एडजस्ट कर देंगे वो। सो ओके दैट अरेंजमेंट में इज जनरली नॉट वेरी ट्रांसपेरेंट। उन्होंने अपने बही में क्या किया, किस तरह से करा, जब समय लेने का आया तो ग्रीवेंस छोटे फार्मर्स का रहता था, उनको हमेशा ये फीलिंग रहती थी कि ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उनको, ओके भले ही वो एक्सप्लॉइट करे ना करे, बट ये फीलिंग रहती है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है डीलिंग्स में, जी राइट। सब्सिडी की आपने जो बात करी, दिस सब्सिडी कम्स इनडायरेक्टली इन इंडिया, नहीं, डायरेक्ट सब्सिडी नहीं है। सब्सिडी पे मेरा एक पॉइंट है। हाँ आप मेरे को एक एग्जांपल बताओ। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे पुणे में बैठा हूँ, मेरी लैंड है मेरे गांव में, ओके, हाँ ते हाँ 5 एकड़ सही या जो भी है, और मेरे नाम पे है वो, मैंने हाँ किसी को उसको बटाई पे दिया हुआ है। हाँ जी। अब जो सब्सिडी मिलेगी फर्टिलाइजर पे या सीड्स पे या जो भी है, अब मेरे को ये बताओ कि वो सब्सिडी एक्चुअल में किसको मिलेगी? ऐसा है, सब्सिडी मिलती तो इनडायरेक्टली, यही मैं कह रहा हूं ना, सब्सिडी फार्मर को नहीं आती। सब्सिडी फर्टिलाइजर सब्सिडी सबसे बड़ी सब्सिडी है जो हाँ आउटगो है फर्टिलाइजर। ओके That fertilizer subsidy does not come to the farmer. That fertilizer subsidy goes to the fertilizer manufacturer. They set a particular level or cost of manufacturing fertilizers. जी अगर उससे ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है
तब उसको फर्टिलाइजर प्लांट को सब्सिडी चली जाती है, फार्मर को नहीं मिलती सब्सिडी। ओके ओके। राइट, तो चाहे आपका टेनेंट कर रहा हो या आप कर रहे हो फार्मिंग, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। दूसरा क्या ओके है, जो फार्मिंग राइट्स हैं फार्म ओनर्स के पास ही हैं अभी तक। जो टेनेंट फार्मर्स थे या बटाई पे जो काम करते थे, उनको उतने राइट्स स्टेट्स में मिले नहीं हैं। द आइडिया इज टू एम्पावर देम टू anybody who is tilling the land should get the facility irrespective of the ownership. तो अब जो That is still बेसिक, not there in India to that extent. वो बटाई पे है, उसको वो तो बेचारा मजदूर की तरह रह जाता है। ओके, तो फिर एजिटेशन में जो मेन पार्टिसिपेशन है वो किसका है? क्योंकि जैसे हमने देखा सिंधु बॉर्डर पे, वहां पे तो बड़े बड़े फार्मर्स, ऑल दोज पीपल जिनकी ट्रैक्टर्स हैं, कहीं कहीं ट्रैक्टर हैं, दे हैव गॉट रिसोर्सेज एट देयर डिस्पोजल। आर दे द रियल फार्मर्स, और मींस तो ऑब्वियसली दे मस्ट हैव हायर्ड सो मेनी पीपल टू डू द टिल्टिंग पार्ट। तो इन एक्चुअल सेंस जमीन भी उनके नाम पे ही होगी। I'll answer this question by asking a question. ओके। Right. Last year, during 2021, India had record agricultural production. जी It broke all the records despite COVID, despite agitation, despite everything. जी So, ये जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में रिकॉर्ड तोड़ पैदावार हुई हमारी, ये किसने करी, कहां से आई? ये किसानों के खेत से आई। हाँ हाँ। It is the real farmers who are still working in the field because they are benefiting out, they will benefit out of these farm laws. Okay. ये एजिटेशन करने वाले मोटिवेटेड लोग हैं जिनका जमीन से कुछ का होगा संबंध। मैं ये नहीं कह रहा कि सब ऐसे ही हैं, बट अधिकतर जो है वो आड़तियां हैं जिनका कमीशन मारा गया, जो एक्सप्लॉइट कर रहे थे किसानों को बाय प्रोवाइडिंग advances to the farmers and exploiting them. Yeah, and this figure, some economists calculated, is to the tune of 8,000 crores or more within Punjab itself. Okay. So, अब क्या हुआ? Government realized this, and what the government said that the payment for the procurement done by the central procurement agencies like FCI will be done only after verification of the land records. यानी जो असली किसान है, अगर उसका खेत है तभी उसको एमएसपी पे जो खरीदा उसका पैसा आएगा और वो सीधे अकाउंट में जाएगा, कैश नहीं हैंडल होगा। क्योंकि these middlemen, they used to take cash, and how much they passed on back to the farmer was a question, and still is a question mark. So to remove that layer, government said that the money will go directly to the bank accounts of the farmers, not the person who is procuring or something. So again, this has created trouble for these people who are agitating. I don't know the exact thing, but this is what I know, that these are being funded by certain elements outside India. वरना पिछले 10 महीने से 1 साल से एजिटेशन चल रहा है, खेतों पे गए नहीं हैं तो कहां से अपना खर्चा चला रहे हैं? And these farmers are generally from Punjab, parts of Haryana, a few of them, and some parts of Western UP. Okay. Eastern UP में कुछ नहीं है, MP में कुछ नहीं है, राजस्थान में कुछ नहीं है, गुजरात में कुछ नहीं है, साउथ में कुछ नहीं है। तो ये फार्मर एजिटेशन है कौन से फार्मर्स? I don't think they are farmers. They are misguided elements, that's all, trying to forcefully create a situation where the government has to take these laws back. It is not though. Most of the eminent agricultural economists, like Dr. Ashok Gulati, Dr. P.K. Joshi, they have advocated for these laws. And it is, when Congress was in the opposition and some opposition parties, even Sharad Joshi, the farm activist, they wanted these kind of amendments in the farm laws since last 30 years. Okay. Now, when the government has implemented it, they are posturing and making a devil out of something which is not there. Okay. So it's basically politically motivated agitation, nothing else. So overall, if there are fears, the point is, even if there are certain infirmities or deficiencies within these farm laws, government has assured that they can definitely have a look at it, but the way it is being
projected is certainly not the right way. That is my Okay. personal opinion. No, absolutely. I think you made the situation quite clear. I'll make another point here. Okay. As far as government has come up with an agricultural infrastructure fund, Okay. which the size of that fund is around 100,000 crores. 1 लाख करोड़ का फंड है वो, जिसमें गांव में जो स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज हैं, उनको एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट इस फंड से पैसा देने के लिए तैयार है और इस फंड से पैसा आएगा, राइट? ओके. एंड 1 लाख करोड़ इज अ बिग अमाउंट. द अदर थिंग इज गवर्नमेंट सेज and it encourages to form 10,000 FPOs. ये टारगेट है गवर्नमेंट का. फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इज, if we say a farmer producer organization, it is something of a dairy cooperative in agricultural sector, something of that sort, but on a corporate line. Okay. Now 1991 में जो reforms हुए, those concentrated mainly on the industrial sector. और 1991 से 91-92 से, sorry, 93-94 से 99-2000 तक जी जो डिफरेंस था एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में, 1993-94 में 25,000 रुपए का डिफरेंस था. 99-2000 में बढ़ के 54,000 करोड़ हो गया और 2019 में some studies said this widened to 1.42 lakhs. Now who benefited? The industrial or the non-agricultural sector. अब अगर इन लॉस को, इन इन्फॉर्मिटीज को हटा के जो पिछले 30 साल से लोग चाह रहे थे वो करते हैं, तो वी विल बी एबल टू रिड्यूस द गैप बिटवीन द एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम. सो दिस इज अ प्रोग्रेसिव स्टेप. ओके. एंड it will also encourage exports, it will also encourage processing and utilization of the capacities available. Okay, I understood your point. Basically small and marginal farmers जो कि total population का, farming population का 86% है, they will be immensely benefited as far as these things are. ऐसा है ना कर्नल साहब? नहीं, बेनिफिट के अलावा आप ये देखें, जो ग्रोथ रेट था एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी अगर हम देखें तो हॉर्टिकल्चर और डेयरी सेक्टर में, जहां गवर्नमेंट के कंट्रोल्स मिनिमल हैं जी, वहां पे 4% to 10% ग्रोथ होती आई है एंड दीज सेक्टर्स हैव प्रोग्रेस्ड. ओके. ओके. इंडिया इज अमंग्स द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड. यहाँ पे गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है मिनिमल है, सब कॉपरेटिव्स कर रही हैं. So government wanted this kind of a situation with agriculture also through FPOs, where the farmers aggregate their produce, have better bargaining power for their inputs, better bargaining power for the prices of their outputs, manage storage facilities and so on and so forth. So everything is interconnected. The other thing is, हम फार्मर की बात तो करते हैं, सब आंसू बहाते हैं कि भाई फार्मर की हालत बहुत खराब है, और वो प्रेमचंद की कहानी वाले फार्मर को पोर्ट्रे कर देते हैं कि हिंदुस्तान का हर फार्मर वैसा ही है. अगर प्याज के दाम 10 रुपए से बढ़ के 15 रुपए हो गए तो कौन सी आफत आ गई? जाएगा तो फार्मर को, पर फार्मर को जाता नहीं है, मिडिलमैन को जाता है. फार्मर 6 रुपए आलू बेचता है और हमें मिलता है 25 रुपए शहर में. मिडिलमैन बीच का है, मिडिलमैन. सो इन अ वे गवर्नमेंट वांटेड टू रिमूव दीज लेयर्स. और इसीलिए नीरज एक बात बता, इसका मतलब ये हुआ कि मिडलमैन का तो हर जगह नुकसान है, जहां पे मंडी है तो भी और जहां पे मंडी नहीं है तो भी, हर जगह मिडलमैन का नुकसान होने वाला है अगर ये फार्म लॉज इंप्लीमेंट होते हैं और फार्मर्स का फायदा होगा. एम आई राइट? कैन वी से दैट? नहीं, ऐसा है, नुकसान बड़ा रिलेटिव टर्म है. अरे उनका overall, let us say if the so-called facilitator or the middleman was earning 100 rupees per unit, they will earn less. They will earn less, but if the farm produce increases, they'll earn more. Okay. पैसा ही तो कम हुआ, turnover बढ़ गया, तो volume बढ़ने से they can earn more money. Yeah, understood your point. So, Neeraj, thank you so much. It has been a wonderful discussion. Of course, you came into that professor style or general public के लिए, it's always good. Thank you so much.